Hello everyone, welcome to JK Exam Crackers. My name is Seher and we are going to do economics together. So students, आपको पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है. So what we are going to do is हम ट्राई करेंगे कि अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो जल्दी से जल्दी हम कवर करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Our first topic is introduction of economics, its concepts and principles. Our today's topic is introduction of economics, basic concept and principles. Okay. So before discussing its basic concepts and its principles, what we are going to do is we are going to discuss the history of our economics कि economics कहाँ से आया, कहाँ से derive हुआ, कौन father of economics है, etc. I have written few keywords, key points over here which we are going to discuss. So students, economics basically is an English word. Okay, economics is an English word, but it is derived from two Greek words. So when I say it was derived from two Greek words, it automatically means कि economics सबसे पहले कहाँ पे पढ़ा जा रहा था. economics को सबसे पहले यूज़ किया गया है ग्रीस में. Now वो कौन से दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिससे हमने economics जो है वो derive किया है. वो keywords हैं okeos, which actually means household, and nemes, which means management. So in the ancient time, what economic meant was economic was only confined to household management. So basically जब हम बात करें ancient time की, जब हम बात करें start of the economics की, तो economics कहाँ पे यूज़ हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ household management में economics को जगह दी गई थी. But nowadays you know that it is a separate subject with vast field, vast scope, and it is used everywhere. So economics is derived from two Greek words. Students, this can be your question, that what are the two key like in this form of MCQs, it can be your question as well. Okay, now the first book, so we have covered this, second this. Now we are going to talk about the first book of economics. So the first book of economics was written by Kautilya, who is also known as Chanakya, in 275 to 350 BCE. So economics, students, is that old, where Kautilya, who also known as Chanakya, have written a book in 275 to 350 BC. The book name was Arthashastra. Okay, so we have covered another important keyword now. Another thing, your economics, what is economics? Is it science? Is it an art? What is it? Okay, so you are going to read many different, I would say you are going to read various definitions जहाँ पे कभी economics को किसी ने science के साथ compare किया, economics को social science बोला है, but economics को हम actually consider करते क्या हैं? So हम economics को actually consider करते हैं science as well as an art. Why science? Because science is basically based upon certain set of principles, certain set of research, development, which is the same case in your economics. But why we are considering it as an art? Because it also includes creativity of a person. It also includes the logical, the balancing of our human mind. So your economics is basically considered as science as well as an art. Okay. Now we have covered how the word is derived, economics. We have covered what is the first book of economics, which was Arthashastra. We have considered what is economics, what do we consider economics. It is considered as science as well as an art. And now we are going to talk about the father of economics. Father of economics, why do we call Adam Smith as the father of economics? So another important point for you, that Adam Smith is known as the father of economics. Now why do we say Adam Smith is the father of economics? Because of his contribution in the economics, various development have taken place. Because Adam Smith ने क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा contribute किया है in the field of economics. So students, Adam Smith is known as the father of economics due to his immense contribution in the field of economics. So अभी हमें ये भी पता है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ अपने में ही नहीं है, इकोनॉमिक्स के सब डिविजन्स भी हैं. नाउ वी नो दैट देयर आर टू सब डिविजन्स इन द इकोनॉमिक्स. व्हाट आर दे? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो बाय द वर्ड माइक्रो वी एक्चुअली मीन स्मॉल.
So micro means small. Micro is also derived from a Greek word, micros. Micro is also derived from a Greek word, micros. On the other hand, macro means large. And macro is also derived from a Greek word, macros. So students, we have covered basics of your economics. Of economics into two parts, which are micro and macro. It was done by Ragnar Frisch in the year 1933. And for this work, for this contribution of Ragnar Frisch, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. एंड वो नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला था 1969 में. Okay students, so again an important fact about your economics. Father of economics is also Adam Smith. So overall Adam Smith is considered as the father of economics as well as the father of microeconomics. Whereas when we talk about macroeconomics, father of macroeconomics is J.M. Keynes, John Maynard Keynes. Fine. So now let's get into some of the important definitions of our economics. So students, now let's just have some important definitions of economics. Okay, first definition is the wealth definition. So it is given by Adam Smith. So the first attempt, सबसे पहली कोशिश हमारी इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करने की करी गई थी एडम स्मिथ से. एडम स्मिथ ने सबसे पहले हमारी इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश करी in his book, which is Wealth of Nations. So the first definition the first attempt to explain our economics was done by Adam Smith. He gave us the wealth definition of economics in his book Wealth of Nation. Now the book was published in 1776. So what you can do is, you can remember as wealth definition was given by Adam Smith in his book Wealth of Definition in the year 1776. Okay, so what does he mean by wealth definition? What does he actually mean by economics? He basically considered economics as a medium where a country can increase the number of riches and power in that country. So his definition states that the greater object of the political economy of every country is to increase the riches and power of the country. So basically एडम स्मिथ का इकोनॉमिक्स से क्या मतलब था? एडम स्मिथ का इकोनॉमिक्स से बस इतना ही मतलब था कि कंट्री के रिचेस बढ़ने चाहिए, उस तरह से हमारी मैनेजमेंट होनी चाहिए कि कंट्री में रिचेस जो हैं, जितने अमीर लोग हैं वो बढ़ते रहने चाहिए. ठीक है, और उसी से जो है हमारी कंट्री की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी. सो बेसिकली एडम स्मिथ का फोकस कहाँ पे था? सिर्फ़ और सिर्फ वेल्थ पे. बट इस डेफिनेशन को इतनी, हम बोल सकते हैं, इस डेफिनेशन को इतनी सपोर्ट नहीं मिली. सो एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया? एल्फ्रेड मार्शल का जो फोकस था, इट वाज नॉट ओनली वेल्थ but also the welfare of the society. Okay, so the welfare definition was given by Alfred Marshall, and he stated this definition in his book, which was called Principle of Economics, in the year 1890. The wealth definition is also known as the classical definition. But it was just the start of an era where economics was just about to be defined. Next definition was given by Alfred Marshall, which was known as the welfare definition, and he stated this definition in the book Principles of Economics in the year 1890. Okay, and what he actually meant is कि wealth ही सब कुछ नहीं है, wealth ही हमारा एक end नहीं है. What is end? End is want. End in the definition means want. So एल्फ्रेड मार्शल का क्या कहना था? एल्फ्रेड मार्शल का ये कहना था, ये बिलीव था कि वेल्थ ही हमारी वांट नहीं है. बस वेल्थ क्या है? वेल्थ एक मीडियम है. वेल्थ सिर्फ़ और सिर्फ एक
मीडियम है, एक ज़रिया है हमारी डिफरेंट वांट्स को ख़त्म करने का। सो क्या मतलब था इस डेफिनेशन का? इस डेफिनेशन का मतलब ये था कि इन क्रिटिसिज्म टू व्हाट एडम स्मिथ हैज़ सेड हैज़ गिवन वेल्थ डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल सेड कि हमारा जो एक एम है वो सिर्फ वेल्थ ही नहीं है, हमारा एक जो वांट है एज अ ह्यूमन, हमारी वांट सिर्फ वेल्थ नहीं है, लेकिन हमारी वांट क्या है? वांट मल्टीपल्स है, और मनी और वेल्थ सिर्फ एक मीडियम है उन मल्टीपल वांट्स को पूरा करने का। ओके, third definition is your scarcity definition. Now this definition is, students, the most accepted definition, एंड हम बोल सकते हैं कि यही डेफिनेशन एक बेस बना हमारा इकोनॉमिक्स का, जिसके आगे मल्टीपल डेफिनेशंस हमें आना शुरू हो गई बाय वेरियस पीपल। यही डेफिनेशन एक बेस डेफिनेशन है जिसके ऊपर मल्टीपल डेफिनेशंस लोगों ने, प्रोफेसर्स ने, स्कॉलर्स ने, रिसर्चर्स ने बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, इसी डेफिनेशन को और इम्प्रूव किया गया, इसी डेफिनेशन को और रीफ्रेम किया गया, बट द बेस ऑफ आर इकोनॉमिक डेफिनेशन इज़ द स्कैरसिटी डेफिनेशन गिवन टू अस बाय लाइनल रॉबिन्स। ओके, in his book an essay on the nature and significance of economic science. Now this definition was given in the year 1932. So guys, scarcity definition is considered as the most acceptable definition out of all the three. Okay, now what does the scarcity definition says? The scarcity definition says that economics is a science which studies human behaviors as a relationship between ends are the wants, and scarce means which have alternative uses. Okay, so scarcity definition ने क्या कहा? Scarcity definition ने कहा कि economics जो है वो ऐसी science है जो ह्यूमन बिहेवियर, मतलब एक इंसान क्या करेगा, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करती है, किस रिलेशन में? उसकी वॉन्ट्स के रिलेशंस में और मीन्स के रिलेशन में, और उन मीन्स की जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये कहा लाइनल रॉबिन्स ने अपनी स्कैरसिटी डेफिनेशन में। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेफिनेशन में क्या था? वेल्थ डेफिनेशन में क्या था? द ओनली फोकस वाज ऑन वेल्थ। सेकेंड डेफिनेशन में क्या है? द फोकस इज ऑन वेल्थ प्लस वेलफेयर। और थर्ड स्कैरसिटी डेफिनेशन में क्या है? वेल्थ प्लस वेलफेयर प्लस लिमिटेड रिसोर्सेज। सो स्कैरसिटी डेफिनेशन ने क्या कहा? स्कैरसिटी डेफिनेशन ने कहा कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करता है, किस रिलेशन में? उसकी वांट्स, उसकी वेल्थ और जो प्रोडक्ट्स, जो उसकी वांट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं जो वो वांट्स फुलफ़िल कर सकती हैं, उन रिसोर्सेज की स्कैरसिटी को भी ध्यान में रखा और उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस को भी ध्यान में रख के एक थर्ड डेफिनेशन दी गई जो कि थी scarcity definition. And out of all the three, most accepted कौन सी है? Scarcity definition is the most accepted one. Okay, so students, overall हमने इस definition को देखना है, और इस definition से हमने क्या extract किया? हमने एक ये extract किया that human wants are unlimited, but resources we have are limited, and also they have alternative uses. For example, अगर हम एक land की बात करें, ठीक है, हमारी want तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि we need population is growing, also we need land for our working, we need land for hospitals, schools, हाउस, शॉप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हमारी वांट इज़ अनलिमिटेड, ठीक है, बट लैंड लिमिटेड ही है, सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एंड ऑल्सो वो लैंड सिर्फ एक ही चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो रही है, वो लैंड ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं उसके। कैसे? इट इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स टू फॉर प्रोडक्शन, it is used for living, it is used for building. So overall what we concluded कि human wants जो हैं वो unlimited हैं। हम एक want हमारी satisfy होगी, लेकिन next day हमारी कोई
न्यू वांट आ जाएगी, ठीक है। बट जो रिसोर्सेज है उसे फुलफ़िल करने के लिए वो लिमिटेड हैं, और लिमिटेड होने के साथ साथ उनके मल्टीपल यूजेस भी हैं। फाइन, सो होप दिस इज़ क्लियर टू यू. I would like you guys to take the screenshot of this. Okay students, so now we are going to talk about the economics division. Okay, so we have already discussed कि economics को divide किसने किया था. सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसे वर्ड्स जो हैं किसने यूज़ किए थे. ऐसे वर्ड्स सबसे पहले यूज़ किए गए थे बाय रैगनर फ्रिश. एंड इकोनॉमिक्स को उसके डिवीज़न कौन से ईयर में मिला, उसको उसका डिवीज़न मिला 1933 में. ओके, so economic division, fine, economics was further divided into two parts. First is your microeconomics and second is your macroeconomics. Now students, when we talk about micro, it actually means small. It is also derived from a Greek word. So हमारा माइक्रो कहाँ से डिराइव किया गया है. माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो है वो भी हमारा ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जो ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, एंड इट एक्चुअली मीन्स स्मॉल. Whereas when we talk about macroeconomics, macro is derived from a Greek word macros, and it means large. So students, when we study economic problems at an individual level, उसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. जब हम इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि हो गया एक कंज्यूमर, वन कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर, वन फर्म. सो व्हेन वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वन इंडिविजुअल, वन कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर, बहुत ही छोटे लेवल पे जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, इट इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. फाइन. ऑन द अदर हैंड, when we study economic issues, economic problems at a larger level, at a level of economy as a whole, at a national level, we are referring to macroeconomics. इसकी हम एग्जांपल्स बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि वन कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर, सिंगल फर्म, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है. मैक्रो इकोनॉमिक्स है जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एट अ वाइडर लेवल पढ़ते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं, उसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, national unemployment, inflation rate, GDP and many more. Fine. So one thing which we have extracted out of this, one thing which we have seen and we have extracted, a thing which is common in micro and macroeconomics is the economic problems, study of your economic problems. Now let's just discuss what are our economic problems. Economic problems, basically economic problems are categorized into four parts. पहला है unlimited wants. So we have already discussed this. Unlimited wants, हम being a human being, हमारी wants जो हैं वो unlimited हैं. आज अगर मुझे ये चाहिए और वो fulfill हो जाएगा तो कल मुझे कुछ और भी चाहिए हो सकता है, ठीक है. सो वो क्या है, मेरी अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं. वो मेरी वॉन्ट्स जो है वो कभी भी सेटिस्फाई, वो कभी भी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो सकती. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्कार्स रिसोर्सेज. वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, ठीक है, वॉन्ट्स तो हमारी अनलिमिटेड हैं. आज एक है तो दूसरी कल है, फिर नेक्स्ट कोई और आ जाएगी. सो वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, लेकिन वो सभी वॉन्ट्स जो हैं वो पूरी नहीं हो सकती. वाई? बिकॉज द मीन्स आर स्कार्स, ठीक है. स्कार्स का क्या मतलब है, लिमिटेड. मीन्स का क्या मतलब है, रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे पास कुछ भी अबंडेंट में नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव यूजेस. अब जो भी यहाँ पे है, ठीक है, जितनी भी जो भी हमारी वॉन्ट्स हैं और उनके स्कार्स मीन्स हैं, अब उनके साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो एक जो रिसोर्स है वो एक ही काम के लिए यूज़ होता है. वो डिफरेंट
वर्क के लिए भी यूज़ होता है, विच मीन्स कि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, विच मीन्स एज ए कंज्यूमर मेरे पास वेराइटी ऑफ चॉइस भी है। ऑल्टरनेटिव यूजेस, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। हम बात कर सकते हैं यहाँ पे अगेन, जैसे मैंने आपको लैंड की बात करी, ठीक है, लैंड एग्जांपल दी, दैट्स द सेम कंडीशन ओवर हियर कि लैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन, फाइन। ऑन द अदर हैंड आई कैन प्रॉब्ली टॉक अबाउट मिल्क। हम मिल्क की एग्जांपल ले सकते हैं। अब मिल्क का जो यूज़ है इट इज़ नॉट ओनली फॉर कंजप्शन, इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस अदर मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर हम देखें तो मिल्क का भी ऑल्टरनेटिव यूज़ है। मिल्क से हम घी प्रोड्यूस करते हैं, हम कर्ड प्रोड्यूस करते हैं, हम मिल्क से चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। सो ओवरऑल वांट्स अनलिमिटेड है, मीन्स जो है वो लिमिटेड हैं, और जो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उनके फर्दर ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड। नाउ द 4th इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ नोन एज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, एंड इसमें हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस की। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैपिटल इंटेंसिवली प्रोड्यूस किया जाए या लेबर इंटेंसिवली प्रोड्यूस किया जाए, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस किया जाए। सो ये है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स। सो व्हेन वी से सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, ये 3 हमारी मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम वन बाय वन। Okay students, so now we are going to talk about the central problem of economy relating to the different types of economies, ठीक है। अभी हम देखें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट इकोनॉमी, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, ठीक है, जहाँ पे बीइंग अ प्रोड्यूसर मेरा ओनली मोटिव क्या है, विच इज़ प्रॉफिट मेकिंग, कि मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम रहे, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट की बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट रहती है, आई वुड से एकदम ना के बराबर इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। एंड इसको हम, इसमें जो वर्क करने वाली ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं वो सारी की सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फाइन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है, जो वेलफेयर मोटिव से वर्क करती है, जैसे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, जो वेलफेयर मोटिव से काम करती है, जैसे कि हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस, जो जितनी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हम बोल सकते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है, जहाँ पे सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। थर्ड कम्स योर मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जहाँ पे प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों ही साथ में काम करती हैं फॉर डेफिनेटली द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे प्रॉफिट और वेलफेयर इन हैंड चलता है, एक साथ साथ ही चलता है। एंड इसकी मेजर एग्जांपल है हमारी अपनी कंट्री इंडिया। सो इन इंडिया यू हैव मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर private and public both the organizations are existing and the motive is equally divided, that is profit motive for the producer and overall welfare is also considered। अभी क्विकली से इनको इसमें फिट करके देखेंगे। सो मार्केट इकोनॉमी में अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ तो मैं ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करूँगी जो मेरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ माई एम इज़ टू टारगेट रिचर ओनली। क्यों, क्योंकि वो शायद से ज़्यादा कॉस्ट पे भी चीज़ खरीद लेंगे, ठीक है। सो माई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, और कैसे प्रोड्यूस कर रही हूँ, आइदर कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, बट मेरा फोकस क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम रहे, ठीक है।
सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है? वेलफेयर के लिए, जो सिर्फ जिसका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, जिसका मोटिव सोसाइटी का वेलफेयर है, ठीक है। तो इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, ऐसा क्या प्रोड्यूस किया जाए जो ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो एट वॉट एवर द प्राइस इज़ वो उसको ले सकती है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कैपिटली और लेबरली। अभी मैं बात करूँ कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, जहाँ पे प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ स्किल वर्क और इंस्टेड ऑफ लेबर्स, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड लेबर का क्या है? लेबर इज़ मोर मैन पावर, जब ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की रादर दैन दी टेक्नोलॉजी। सो बीइंग इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी मेरा एम क्या रहेगा? मेरा एम रहेगा कि मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक से ही चीज़ें प्रोड्यूस करूँ। वाई? बिकॉज दिस इज़ एन एरिया जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का स्कोप जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे फोकस नहीं रहता है, बट कंसीडरिंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ही प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों इकोनॉमीज़ का मिक्सचर है, जहाँ पे एम क्या है? एम है प्राइवेट प्लस पब्लिक वर्किंग टुगेदर फॉर द प्रॉफिट एज वेल एज द वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। सो now we have covered the basic concept of your economics, and now we'll move further for discussing the principles of your economics.